آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس سنتی کے مطابق تشریف رکھیں۔ اس وقت 12 شاگردوں میں سے ایک جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کہنوں کے پاس گیا اور کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اس کو 30 مسکال توڑ کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کی تیاری کریں؟ یسوع نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے، میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ جو میرے ساتھ کباب میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ تو نے خود ہی کہہ دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دی اور توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو بہتوں کی خاطر گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تاکہ اس شیرے کو پھر نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اور وہ گیت گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل ہو جاؤں گا۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، اگرچہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائے، مگر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے اسی طرح کہا۔ تب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی نام ایک مقام میں آیا اور ان سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا۔ تب اس نے ان سے کہا، میری جان بہت موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی اور کہا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتا پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو
ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर गया। और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा उन 12 में से एक था, आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूर तलवारें और लाठियां लेकर सरदार कहनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चुनूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वही यीशु के पास आकर उसने किया, ए रबी सलाम, और उसको मुकर्रर चूमा। यीशु ने उनसे कहा, ऐ मियां, तू कहां तक पहुंचा? इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ उठाकर अपनी तलवार खींची और सरदार कहन के गुलाम पर चढ़ाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज्यादा इसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते को यूं ही पूरा होना जरूर है। कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूर से कहा, कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इससे सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। मगर यीशु के पकड़ने वाले उसे क्याफा कानून के पास ले गए, जहाँ फकीह और बुजुर्ग जमा थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहने आजम के महल तक गया और अंदर जाकर खादमों के साथ नतीजा देखने को बैठा। तब काहने आजम और सब अहल अदालत आलिया यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाई। हालांकि बहुत से झूठे गवाह जाहिर हुए। आखिरकार वो आए और बोले, इसने कहा है कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। तब काहने आजम ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब काहने आजम ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू अल-मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमको बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल-कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर काहने आजम ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े। इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको घून से मारे। और दूसरों ने तमाचे मारकर कहा, ऐ मसीह, नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा? जब पतरस बाहर सहन में बैठा हुआ था तो एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु जलीली के साथ था। उसने सबके सामने इनकार करके कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। जब वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा तो दूसरे ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया, मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो वहां खड़े थे पास आकर पतरस से कहा, बेशक
तू भी उनमें से ही है, क्योंकि तेरी बोली ही जाहिर करती है। इस पर वो लानत करके कसम खाने लगा और कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिर फौर मुरद में बांध दी। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने उससे कही थी कि मुरद के बाद देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार रोया। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले ने यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया है, तो पछताया और वो 30 मिस्काल सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मिस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मगर सरदार काहनों ने 2 मिस्काल लेकर कहा, इनको खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस बात से आज तक वो खेत का खून कहलाता है। तब वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि उन्होंने 30 मिस्काल लिए, यानी वो लगान जो उस पर लगाया गया। जिन्होंने लगाया वो बनी इस्राएल में से थे। उनको कुम्हार के खेत के वास्ते जिसे खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। और यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू खुद ही कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? मगर उसने उसे किसी एक बात का भी जवाब न दिया। चुनाचा हाकिम नहायत मुताजिब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की हालत एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बलाबा नामी एक मशहूर कैदी था। पास जब वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से इसे हवाले किया है। और जब वो मसनदे अदालत पर बैठा था, उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा, तुम इस राजसभा से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग लो और यीशु को खुला कराई। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उससे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सबने कहा, उसे सलीब दे। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होना चाहता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूँ, तुम जानो। सब लोग बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर पिलातुस ने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर तमाम दिनों उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे गर्मसी जोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मारकर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। उस पर थूका। वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे और जब उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतारा। फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले। जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नामी एक किरवानी आदमी को पाकर बेगार में पकड़ा कि उसकी स्लीब उठा ली। और जब उस मुकाम पर पहुंचे जो झुलता यानी खोपड़ी की जगह कहलाता है, उन्होंने उसे पथ मिली, मैं पीने को दी और उसने चल
नہ चाहे। जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को पूरा डालकर बांध दिया। जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांध लिए और मेरे पूरे कुर्ते पर पूरा डाला और वहाँ बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यीशु है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ 2 डाकू को भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं, और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिलाकर उसकी मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल का ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहनों ने भी माँ फकीहों बुजुर्गों के चच्चा मारकर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएली का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। इसका तवक्कुल खुदा पर है, अगर वो इसको चाहता है तो वो अब इसे बचाएगा, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, वो इलियास को पुकारता है। और फिर उनमें से एक ने दौड़कर अस्वन छीना और सरका से भरा और सरकने पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखिए कि आया इलियास इसे बचाने आता है। और यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। हमसे खड़े होकर और दुआ करेंगे। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें कड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर फकीरों को दिखाई दी। जब सूबेदार ने और उन्होंने उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहाँ बहुत सी औरतें भी थी जो दूर से देख रही थी और जो जलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी। उनमें मरियम मजदली और यूसुफ की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ भी थी। जब शाम हुई तो यूसुफ नामी रामती एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। तब पिलातुस ने लाश दे देने का हुक्म दिया। यीशु ने लाश को लेकर यूसुफ ने लाश को लेकर साफ किताबी चादर में कपड़ाया और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई हुई थी। और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर उठाकर चला गया। मरियम मजदली दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे रोज जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों पिलातुस के पास जमा होकर कहा, ऐ आका, हमें याद है कि उस दगाबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि 30वें दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। ऐसा ना हो कि उसके शरीर आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है।
तो ये पिछला फ्रेब पहले से भी बदतर होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जिस तरह मुनासिब समझो उसकी निगहबानी करो। उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मोहर कर दी और पहरे बिठाकर कब्र की निगरानी की। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह की माफ